Hello students, I welcome you all to my YouTube channel ePolitical Science. Today we are going to discuss a very important topic that is related to Farm Bill. So I have brought before you discussion on Farm Bill 2020. Since these bills they have already been passed in Lok Sabha and Rajya Sabha and have become act, and there are a whole lot of protest regarding these bills. So what are the main issues that are there that has led to protests, and what are the role of state government, central government, what they are saying, what are the loopholes in the bill, what are the problem areas that one can identify within that bill, and how we can reform it, how we can put any suggestions, what are our views finally that we can place, so that we can put an alternative if these bills are being protested. So let us discuss on this important topic of Farm Bill. So first of all, we all know that India, more than 60 to 70% of the uh, society, it belongs to the farming community, the agricultural community. And when we have more than 60 to 70% of community belonging to farming, so there needs to be certain substantive efforts by the government, central government, the state government, to give them sustainable sources of livelihood, sustainable um, policies where they can enhance, where they can enhance their concern and their empowerment is taking place. Okay, so there's a quotation, within quotation I have given this, that 8 out of 10 farmers in India, they are small farmers who have a small plot of land not less than 2 hectares, or one can also say that 85% or more than 85% of the agricultural farmers, they belong to marginal and very less land holdings, they have very less land holdings. So within this backdrop, let us try to understand these three bills which have also passed by both the houses. Now the first act, or we can say bill, was Farmers Produce, Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020. The second one, Farmers Empowerment and Protection Agreement of Price Assurance Farm Services Act 2020, and then the third one, Essential Commodities Amendment Act 2020. Now the main objective of the whole lot of this coming of the bill, and after the passing bill, what one can say that it is trying to liberalize and deregulate the market for the agrarian sector, and it is simultaneously also trying to transform agricultural sector, bring certain reforms in agricultural sector. So it is also trying to bring the agricultural reforms. Now let us student try to understand these three bill which has become act in details. क्या इस कानून में क्या क्या है, हमें इसको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी आक्रोश है किसानों के अंदर, चाहे हम यूपी में देखें, हरियाणा में देखें, पंजाब में देखें, ऑल ओवर भारत में हम देखें, आंदोलन हो रहे हैं। और जब से ये बिल आया और ये पारित हो गया, उसके बाद से काफ़ी आक्रोश, आंदोलन, प्रोटेस्ट, डिसेंट हम देख रहे हैं। तो इसके दोनों प्रॉस एंड कॉन्स हमें समझने की ज़रूरत है। तो पहला जो ये एक्ट है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, दिस एक्ट इट अलाउज फार्मर्स टू एंगेज इन ट्रेड ऑफ देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस outside the physical markets notified under various state agricultural produce marketing committee laws APMC के संदर्भ में जो है ये इन चीज़ों को अलाउ करता है। it will also override all the state level APMC acts। ये कोशिश करता है कि जो भी स्टेट लेवल APMCs है वो अब ख़त्म कर दिया जाए, और फार्मर्स जो है डायरेक्टली अपना कांटेक्ट करें, फिजिकल जो मार्केट्स हैं वहाँ इंटरवीन करें, एंड दे वेंचर इनटू दिस मार्केट डायरेक्टली। नाउ इट प्रमोट्स बैरियर फ्री इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस।
ठीक है, कोई बैरियर, कोई यहाँ पे जो है रोक टोक नहीं होगा और फ्रीली जो है फार्मर्स जो है अपने प्रोड्यूस को इन्हांस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं. नाउ प्रपोजेस एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डायरेक्ट एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ प्रोड्यूस. Entities that can establish such platforms include companies, partnership firms, societies. Then it also allows farmers the freedom to sell outside state notified APMCs. जो भी ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है, इन कमेटियों के बियॉन्ड भी फार्मर्स जाके अपनी फ्रीडम है उनको कि वो अपने सेल खरीद और बिक्री कर सकते हैं और उन चीज़ों का निर्वाह कर सकते हैं जो पॉलिसीज़ हैं. एंड दिस इंक्लूड्स अलाउइंग ट्रेड एट फार्म गेट्स, वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेजेस एंड सो ऑन. नाउ the fifth point is prohibit state government or APMCs for levying fees, cess or any other charge or on farms produce. अब जो राज्य लेवल पे जो APMCs बनाई गई थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है, उसको बिल्कुल जो है वो ओवरराइड करने की कोशिश की गई है इस कानून के अंदर. हम कह सकते हैं न्यूट्रलिटी ऑफ APMCs वन कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड. तो क्योंकि अब स्टेट APMCs ख़त्म हो जाएंगी तो जो है एक बहुत हद तक जो आधार है मार्केटिंग कमेटी का वो ख़त्म हो जाएगा. तो इस संदर्भ में भी काफ़ी हद तक आक्रोश है कि इट वुड लीड टू corporatization and more binding by the central government as well as the corporate factors. Then the second point or the second act which is also one of the farm bill, वो है Farmers Empowerment and Protection Agreement of Price Assurance and Farm Services Act 2020. Now according to PRS India, एक स्टैंडिंग कमेटी का एक ऑब्जर्वेशन आया था ऑन एग्रीकल्चर 2018-19 which observed that APMC laws needed reforms as cartelization had begun due to limited number of traders in APMC मंडीज़. इन्होंने कहा कि अब जो है APMC के कानून में बदलाव की बहुत ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा जो है APMC मंडीज़ में इस तरह के कार्टलाइजेशन अब डेवलप हो रहे हैं. देयरफॉर द फॉलोइंग लॉ वो जो था वो ये जो लॉ है ये पास किया गया और इसमें काफ़ी सारे प्रावधान किए गए हैं. तो इसमें ये कहा गया है द एक्ट सीक्स टू प्रोवाइड फार्मर्स विद अ फ्रेमवर्क टू इंगेज इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. अगर फार्मर चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अपने आप को इंगेज कर सकता है. वेयर फार्मर्स कैन एंटर इनटू डायरेक्ट एग्रीमेंट विद द बायर के साथ वो डायरेक्ट एग्रीमेंट कर सकता है अपनी खरीद और बिक्री के लिए टू सेल द प्रोड्यूस टू देम एट प्री डिटरमाइंड प्राइसेस. देन सेकेंड वन, irony of the bill is that there is no mention of MSP. अब एक बहुत एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन यहाँ पे है कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो अब तक फार्मर्स को मिलता आ रहा था और उसकी वजह से एक सब्सिडी उनको मिलती थी और जो प्राइस के रेट थे उनके ग्रेन्स के वो एक हद तक मिनिमम रहते थे. तो अब वहाँ पे यह है कि इस बिल में उस चीज़ का बहुत हद तक मेंशन नहीं है दैट बायर्स नीड टू ऑफर टू फार्मर्स, जो फार्मर्स को देते हैं बायर्स. नाउ थर्ड पॉइंट, प्रोड्यूस जनरेटेड अंडर फार्मिंग एग्रीमेंट्स दे आर exempt फ्रॉम एनी स्टेट एक्ट्स aimed at regulating the sale and purchase of farming produce, therefore leaving no room for states to impose MSPs on such produce. अब इसलिए क्योंकि ये चीज़ें सारी जो है एग्रीमेंट्स और आउटसाइड जो कॉर्पोरेट जगत से वो चीज़ें रेगुलेट होंगी तो बहुत हद तक ये इसमें संभवता है कि जो MSPs हैं वो अब का आधार बहुत कम होगा या ना के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट. Okay, so such agreements also exempt the sponsor from any stock limit obligations applicable under the Essential Commodities Act में जो प्रावधान है वो भी इसको वो प्रावधान भी ये कानून अगर आ जाता है और आ गया है तो लिमिट करता है. स्टॉक लिमिट्स आर अ मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग होर्डिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. ये जो हम स्टॉक लिमिट्स करते हैं वो एक बहुत बड़ा एक आधार होता है जिससे एग्रीकल्चरल के जो प्रोड्यूस हैं उनको होर्डिंग को हम रोक सकें. अब तीसरा जो बिल आया वो है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020. दिस इज़ एन अमेंडमेंट टू द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में जो पारित कानून हुआ था इसका ये अमेंडमेंट आया है. और ये जो एक्ट है ये क्या करना चाहता है, इट सीक्स टू रेस्ट्रिक्ट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन. अब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स बहुत कम हो जाएंगे, चाहे वो प्रोडक्शन का मुद्दा हो, चाहे वो सप्लाई का मुद्दा हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का मुद्दा हो ऑफ सर्टन की कमोडिटीज़. नाउ व्हाट डज दिस एसेंशियल कमोडिटीज़ ट्राइज टू अचीव?
दिस एक्ट विल रिमूव cereal, pulses, oil seeds, edible oils, onion, potatoes, जितने भी इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ हैं उनको लिस्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज से हटाता है ये कानून। फिर क्या करता है, गवर्नमेंट कैन इम्पोज स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स एंड रेगुलेट द प्राइसेस फॉर द अबव कमोडिटीज अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ओनली अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अब क्या है कि गवर्नमेंट का जो से है, गवर्नमेंट की जो बाइंडिंग है, गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है, चाहे वो हम स्टेट की बात करें चाहे हम सेंटर की बात करें, वो ना के बराबर हो जाएगा। और वो होगा भी तो तभी होगा जब कोई कैलामिटी, कोई जो है वॉर या कोई ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस अराइज होंगे, देन ओनली जो है इस तरह के इंटरवेंशंस हो सकते हैं, नहीं तो नहीं होंगे जो पहले होते चले आए थे। और तीसरा, इट गिव्स फ्रीडम टू प्रोड्यूस, होल्ड, मूव, distribute and supply produce leading to harnessing private sector FDI in agricultural infrastructure। अब ये एक अलग तरीके से अगर हम अलग शब्दों में कहें तो ये FDI को प्रमोट करता है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, कॉर्पोरेटाइजेशन को प्रमोट करता है, प्राइवेट सेक्टर के आने को हार्नेस करता है, उनकी चीज़ों को और इन्हेंस करता है। और जो गवर्नमेंट कंट्रोल है, जो स्टेट कंट्रोल है, जो स्टेट फैक्टर्स है, जो सरकारी जो पॉजिटिव हस्तक्षेप है, चाहे वो MSP के लिए हो, चाहे प्राइस रेगुलेशन के लिए हो, उसको बहुत हद तक कम करता है। इसलिए फार्मर्स में काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी डिसेंट है। पहली बात, जो फार्मर्स ऑलरेडी, जो किसान ऑलरेडी इतने इनसिक्योर हैं, एक ऋण से वो दबे हुए हैं, जो बाहरी नेचुरल फेनोमेनन होता है, रेनी सीज़न और सारे पैंडमिक हैं, उन सब चीज़ों से वो इर्द गिर्द वो सब उनसे जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और उस संघर्ष के समय में इस तरह का अचानक से बिल आ जाना, जिस पे बहुत हद तक अगर कहा जाए, देखा जाए तो एक डेलिबरेशन और डिस्कशन नहीं रहा, जिसकी वजह से काफ़ी आक्रोश रहा। तो सरकार क्या कहती है, व्हाट डज गवर्नमेंट से? सरकार कहती है, सेंटर अभी रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस का में अभी यूपी में मोदी सरकार ने ये एक अनाउंसमेंट किया दैट ₹1 लाख करोड़ डायरेक्टली टू स्मॉल फार्मर्स उन्होंने सेंटर ने दिया है ड्यूरिंग द पैंडमिक, ऑफ विच ओवर ₹25,000 करोड़ दे हैड गॉन डायरेक्टली टू यूपी फार्मर्स। गवर्नमेंट ने ये भी एक जो है सांत्वना और एक संतोष जाहिर किया है कि जो पॉलिसीज़ है ऑन MSP, चाहे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करें, क्रॉप इंश्योरेंस की बात करें, किसान क्रेडिट की बात करें, पेंशन स्कीम्स की बात करें, ये सब लगातार चलते रहेंगे और इसमें कहीं से कोई कमी नहीं आएगी। एंड फाइनली इट वुड लीड टू एम्पावरमेंट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। एंड गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फैक्ट दैट दो देयर आर 85 to, or we can say more than 85 to 90% of farmers, they are from small and marginal background. That is the reason that government is giving a benefit, trying their level best to put all their efforts to empower them, and also trying to come over the issue of mistrust, distrust, whatever has recently happened। और वो सब कोशिश जो है सरकार की वो चल रही है और बाकायदा हो रही है। पर अगर हम पूरा फार्म बिल को देखें तो अब प्रॉब्लम एरियाज़ क्या है? प्रॉब्लम एरियाज़ को समझने के लिए जैसा मैंने पहले बताया कि बिल के आने से पहले कोई कंसेंसस, कोई कंसेंट, कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, तो इसलिए एक लैक ऑफ कंसेंसस रहा अमंग द स्टेक होल्डर्स, जो लोग उससे अफेक्टेड हैं, अफेक्टेड कम्युनिटी। दूसरा, इट कुड रिजल्ट इन कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ फार्मिंग सेक्टर। ऐसा हो सकता है कि जो हम प्राइवेट सेक्टर का इन्फ्लुएंस की बात करें, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा फार्मिंग सेक्टर में। बहुत हद तक ये एक एनालिसिस की जा सकती है इन बिल्स को देख के, इनका नेचर देख के, इनके ऑब्जेक्टिव को देख करके। जिस तरह से APMC के, स्टेट APMC को ख़त्म करने की बात कही गई है, MSP को कम करने की बात कही गई है, प्राइवेट सेक्टर्स को लाने की बात कही गई है, जो मार्जिनल फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स इतने सारे हैं और उनका बहुत हद तक जो है मार्केट वर्ल्ड के साथ कनेक्शन नहीं है। जैसे मैं थर्ड पॉइंट में कह रही हूँ कि एटलीस्ट 85% ऑफ द इंडियन फार्मिंग सेक्टर दे सिंस कंसिस्ट ऑफ मार्जिनल फार्मर्स हु डू नॉट हैव एक्सेस टू मार्केट्स और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। हाउ दे आर गोइंग टू इंगेज देमसेल्व्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, और आउटसाइड वर्ल्ड के साथ अपने आप को कनेक्ट करना और फिर उन चीज़ों में जो पहले जिस तरह से कर रहे थे, तो कैसे वो उसमें सफल होंगे, ये खुद में भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देन फोर्थ पॉइंट, इन द एब्सेंस ऑफ APMC के नहीं होने की वजह से क्या कोई अल्टरनेटिव प्राइस सेटिंग मैकेनिज़्म
सरकार ने सोचा है या लाने वाली है, इस पे कोई डिस्कशन, कोई बात नहीं कही गई है। और अगर हम देखें, एक उदाहरण दें, 2006 में ऐसा ही प्रावधान बिहार में किया गया था, बिहार सरकार ने किया था और एपीएमसी को ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से इट हैड लेड टू डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इन दैट स्टेट। सो हम कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, ऐसी चीज़ें ना करें जिससे, क्योंकि ऑलरेडी पैंडमिक चल ही रहा है, इकोनॉमिक लेवल, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, हर लेवल पे हम एनपीएस, इकोनॉमिक लेवल पे बहुत हद तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बेस है, तो हम इसको बेस बना के रखें, इनके साथ हम डायलॉग करें, डिलिब्रेशंस करें, डिस्कशन करें और हम उनको साथ लेके चलें, क्योंकि दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर सोसाइटी। सो व्हाट इज़ वे आउट स्टूडेंट्स? वन कैन से दैट डायलॉग, डिस्कशन, डिलिब्रेशंस शुड बी डन और कंटिन्यूसली होते रहना चाहिए, ठीक है। एश्योरेंस देना चाहिए फार्मर्स को कि इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग एफर्ट्स लिया गया है, उनके साथ वार्तालाप करके उनको अपने साथ लेके चलना, क्योंकि इंक्लूसिव पॉलिसी बहुत ज़रूरी है और सरकार काफ़ी हद तक इस पर काम भी कर रही है। तो हमें एक बैलेंस बना के चलना है और समझना है सारी गतिविधियों को, बजाय कि हम सिर्फ आक्रोश व्यक्त करें और प्रोटेस्ट करें। द प्रोटेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन एंड द लास्ट इज रिफॉर्म्स आर नीडेड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिप्राइविंग फार्मर्स ऑफ देयर राइट्स। हम कहते हैं कि जो कृषि जगत है उसमें हमें सुधार की आवश्यकता है, हम उसको रिफॉर्म करें, बदलाव करें, पर अपने मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स के कॉस्ट पे ना करें, उनके लाइवलीहुड के कॉस्ट पे ना करें, क्योंकि आफ्टर ऑल सबकी लाइवलीहुड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो होप स्टूडेंट्स we had a good discussion on Farm Bill 2020. This topic would help you not only in UPSC in your general studies but also in development process and social movements in contemporary India का जो पेपर है डिसिप्लिन स्पेसिफिक थर्ड ईयर में जो पढ़ना है, उसमें आपको पेजेंट मूवमेंट पे ऑब्वियसली इट वुड हेल्प यू। मैंने अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई हैव ऑलरेडी सेंड मैनी लिंक्स ऑफ माई बुक्स सो दैट यू कैन रेफर those books and many in my जो भी मेरा डिस्कशन होता है, बातें होती हैं, उसमें मैं बुक्स रेफरेंसेस की जिक्र करती हूँ, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड देन आई हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट माई सोशल मीडिया लिंक, यू कैन स्टे कनेक्टेड फ्रॉम देयर ऑल्सो, यू कैन पुट योर वैल्यूबल कमेंट्स एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स all through all over the fraternity, student fraternity, or my friends, or anyone who all are interested in these discussions. So I hope we had a good discussion and I wish you all the best. Have a nice day. Take care, students. Thank you.